Ignited Minds Tutorials has recently released an insightful video explaining the powerful poem Amanda for Class X CBSE students. In this comprehensive analysis, they delve into the poem's theme, provide a concise summary, and highlight the remarkable poetic devices employed by the revered author. The video begins by elucidating the underlying theme of the poem, Amanda, which revolves around the concept of determination and resilience in the face of adversity. Furthermore, the video succinctly presents a summary of the poem. Ignited Minds Tutorials also focuses on the various poetic devices employed in the poem. They dive into the remarkable use of metaphors, similes, imagery, and symbolism, elucidating how each device contributes to the overall impact of the poem. Such exploration of poetic elements enhances students' understanding of the artistry involved in creating poetry. So, if you are a Class X CBSE student seeking a comprehensive explanation of the poem Amanda, look no further than Ignited Minds Tutorials video. With their in-depth analysis, you will gain a thorough knowledge of the poem's theme, summary, and the artistic techniques employed by the poet, empowering you to excel in your studies and appreciate the beauty of the written word. ओके, यहाँ पे हम पोएम अमांडा को डिस्कस करने वाले हैं। तो इट वाज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन्स पोएम अमांडा इज चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द चैलेंजेस ऑफ मैच्योरिंग। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द चैलेंजेस ऑफ मैच्योरिंग। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड अमांडा एज शी फेसेस द डिफिकल्टीज ऑफ ग्रोइंग अप। तो उसके जो डिफिकल्टीज होते हैं व्हेन शी ग्रोज अप, ठीक है, when her mother expects her to behave responsibly and she desires to escape from the duties of growing up। तो भाई साहब इसको अपने duties of growing up मतलब देखो हर घर की बात है भाई साहब, अरे घर का थोड़ा सा काम कर लो, ऐसा लड़कियों को हम बोलते ही हैं, ठीक है, तो घर का थोड़ा सा काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पेस्टर्ड बाय हर मदर टू डू एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, एंड शी वॉन्ट्स टू बी, और उसका जो बचपन का नेचर है टू रिमेन फ्री, ठीक है, तो वो एक चैलेंज है, ठीक है, and she desires to escape from the duties of growing up. The poem emphasizes the battle to maintain the freedom and the joy of childhood, ठीक है, when adult duties start to take control, ठीक है। तो ये एक बैटल चल रहा है, एक जद्दोजहद चल रही है भाई साहब, ठीक है। तो अपने बचपन को भी वो पूरा सैक्रिफाइस नहीं कर पा रही है, और प्लस उसका एक कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है, उसको बार बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास दिलाया जा रहा है, घर के कुछ काम काज कर लो, ये वो है ये बोला जा रहा है, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट फाइट, ठीक है। Robin Klein has expressed the views of a little girl Amanda who is constantly pointed out by her mother for making mistakes, ठीक है। तो हर समय उसकी माँ जो है उसके किए गए मिस्टेक्स पे बार बार टोका टोपी कर रही है। आपके घर में भी यही होता होगा, क्या लड़का क्या लड़की, लड़कियों पे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये होता ही है। The parents are constantly telling us or pointing our mistakes, ठीक है, mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live। ऐसे mistakes जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई साहब they are not a part of good conduct। See, when a girl is there in a family, she is expected to behave in a certain way, ठीक है, and if she is not behaving in a certain way, then it is considered as ill-mannered, it is not considered as good, ठीक है। So that is what was happening, a part of the code of good conduct laid down by society in which we live। Summary of the poem: the poem describes a girl, the poem basically describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes। nagging मतलब किट करते रहना, ठीक है, for her mistakes that she is doing। See, the mother has a responsibility with her कि she should be basically doing the household jobs, she should be acting responsibly as well, ठीक है, क्योंकि मदर को ये सब देखना पड़ेगा कि उसकी बच्चे की परवरिश ठीक हो, ठीक है। She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails। तो आपके भाई साहब एक बैड हैबिट होती है करना, ठीक है, बहुत सारे लोग एंजाइटी में ऐसा करते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन बाइटिंग देयर नेल्स, ठीक है, एंड फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर। बाइटिंग नेल्स इज अ बैड हैबिट, ठीक है। पहले तो भाई साहब आपका हाथ आपके सलाइवा से कंटेमिनेट होता है, और दूसरा नेल्स में जो
कीटाणु होते हैं वो आपके शरीर में जाते हैं। उस चार्जर को बंद करते रहते हैं। थैंक यू। ओके, सिटिंग नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर, तो लड़कियों को बैठने का एक तरीका होता है, ठीक है, और वो ऐसा ठीक से बैठती नहीं है। द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमेंडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर, तो मतलब बहुत आलसी है। टू दिस अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड, तो अभी ये इतना मतलब अपने मम्मी से परेशान हो गई है, ठीक है, उसकी मम्मी उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, तो वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मरमेड। मरमेड इज हाफ फिश हाफ ह्यूमन, ठीक है। सो एक इमेजिनरी चीज है, नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, कोई ऐसा स्पीशी पाया नहीं गया है, एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है। जनरली मरमेड्स आर मैजिशियंस, दे विल फुलफिल ऑल योर विशेस, ठीक है। इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मरमेड who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. Further, she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. तो ना ही भाई साहब होमवर्क कर रही है, ना भाई साहब cleaning her shoes. She then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. ठीक है? So she is being fed up of her being, तो ये imagine कर रही है अपने आप को एक orphan की तरह, ठीक है? She imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand, would live a peaceful life. Next, Amanda is, so she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. ऐसे उसके imaginary दौड़ है, ठीक है? Next, Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples. She is also scolded for not listening to her mother. So now Amanda thinks of being a Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. In the tower, she will be alone and will live a peaceful life and never allow anyone to come in. तो इसके अलग अलग मतलब रिजल्ट्स हो रहे हैं। वो कभी अपने आप को मरमेड समझ रही है, कभी अपने आप को ऑर्फन समझ रही है, कभी आपको भाई साहब रैपुंजेल समझ रही है। All that she wants is to be cut off from her parents, ठीक है? Okay. Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. ठीक है? At this time, the poet has not written any reaction from Amanda's side. ठीक है? तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन finally the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. ठीक है? At this time, the poet, the constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. मतलब पहले तो क्या हो रहा था कि ये जो उसकी माँ उसको बार बार सुधारने की कोशिश कर रही थी कांस्टेंट नैगिंग से, वो अपने आप को कभी मरमेड मान रही है, कभी अपने आप को भाई साहब रैपुंजेल मान रही है, एंड तक वगैरह वगैरह। लेकिन नैगिंग इस कदर पहुंच चुकी थी कि अभी वो मतलब इम्यून हो गई है, जैसे हवा चल रही है वैसे भाई साहब मम्मी की नैगिंग भी चल रही है, ठीक है। सो शी हैज बिकम नाउ इम्यून टू इट, ठीक है। So this constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. She used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. ठीक है, तो ऐसा उसका मानना है। Don't bite your nails, Amanda. So उसकी माँ बोल रही है उसको, भाई साहब नाखून मत चबाओ, ठीक है। Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. तो slouching मतलब ऐसे पीठ को ऐसे करके सोना, ठीक है। Amanda, and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो ऐसा सोचिए कि जब उसकी माँ चिल्लाकर ऐसा बोल रही है उसको, तभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके माइंड में वो शायद माँ को सुन भी रही है या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन उसके माइंड में ये चल रहा है कि एक लैंग्वेज, ठीक है, एक मस्त सी है जहाँ पे आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं भाई साहब, एमरल्ड सी, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर का सी है, मतलब एकदम स्वच्छ पानी है, ठीक है, पीसफुल सी है, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और उस पूरे उसमें सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, उस पूरे उसमें सिर्फ मैं हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब आराम से भाई साहब फैल के भाई साहब अपना जीवन का आनंद ले रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑन वन एंड हर मॉम इज सेइंग दैट प्लीज सिट स्ट्रेट, डोंट लाउज इन द बेड, ठीक है, एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स, इससे हंच मत करो, डोंट बाइट योर नेल्स, ये सब सारी चीज़ें बोल रही हैं उसकी माँ उसको सुधारने के लिए, उसके हैबिट्स को सुधारने के लिए। और इसके माँ के नैगिंग के चलते उसके दिमाग में चल रहा है कि शी इज़ अ मरमेड विच एंड शी इज़ अलोन इन अ सी वेर इन देर इज़ नो बडी एल्स, ठीक है।
in a green sea, a peaceful sea. Emerald मतलब ग्रीन कलर का सी है भाई साहब. She is the only resident, she is the only person out there drifting, so she is like a mermaid out there. ठीक है. Explanation of the poem: the poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes. ठीक है. And now she imagines her life to be. The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails. ठीक है, biting nails के लिए, which is a bad habit. Next she asks her to sit straight without bending her shoulders. तो straight बैठो भाई साहब. ठीक है, without bending your shoulders. Don't slouch. Has a habit of bending her shoulders and sitting lazily is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. तो उसकी माँ चाहती है कि वो right posture में बैठे. ठीक है. At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. तो एक deep green sea में है भाई साहब, ऐसा imagine कर रही है. She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. So ये जो beautiful सा green सा sea है, she wants her to be the only resident. वहाँ पे सिर्फ वही हो. ठीक है. She imagines herself like a mermaid who is alone there. एक mermaid जो वहाँ पे इकलौती है. ठीक है. And leads her life in a very relaxing way. और बड़े relaxing way में अपना life lead कर रही है. ठीक है. Okay. She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. As if वहाँ पे कोई नहीं है, ना उसकी माँ है, ना उसकी डांट है. ठीक है. उस पूरे ग्रीन सी पीसफुल सी की वो इकलौती मतलब वहाँ पे है. ठीक है. एज अ मरमेड. ठीक है. That's what she is imagining. Generally, when we are stressed out in life, we will imagine for a very relaxed life somewhere else. So that's what Amanda is doing as well. Amanda भी भाई साहब अपने परिकल्पना में एक ऐसी दुनिया की एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच रही है जहाँ पे उसके मदर ना हो, उसके मदर की स्कोल्डिंग ना हो. ठीक है. ये सब सारी चीजें ना हो. ठीक है. Literary devices. Anaphora, repeated use of a word at start of two or more lines. Don't bite, don't hunch. ठीक है. तो एनाफोरा हम किसको बोलते हैं भाई साहब? रिपीटेड वर्ड. तो आपका डोंट बाइट, डोंट हंच. ठीक है. रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स. असोनेंट्स, यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ, डोंट. ठीक है. योर, ओ. देखो भाई साहब आपका ऐसे असोनेंट्स यूज हुआ है, वॉवल साउंड ओ प्रोमिनेंटली इन 3 शब्दों में इस एक लाइन में दिख रहा है. राइमिंग स्कीम आपका देखो ए बी ए सी सी. ठीक है. तो आप देखो भाई साहब अमांडा ए बी. ठीक है. अगेन ए. ठीक है. फिर आपका भाई साहब ये ए बी, तो ये आपका हो गया भाई साहब सी स्लाइटली. ये तो क्या हो गया भाई साहब? स्लाइट. अमांडा ए मी ब्लिसफुली. ठीक है. ओके. सी. ठीक है. सो दिस विल बी ए बी ए सी सी. अमांडा स्ट्रेट, अमांडा सी मी ब्लिसफुली. ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब सी मी ब्लिसफुली, ये हो गया सी, ये हो गया ए. ठीक है. ये हो गया बी और फिर से ए. तो ए बी ए सी सी. मेटाफर यूज ऑफ द वर्ड एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर. ठीक है. तो यहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है. एमरल्ड मतलब ग्रीन. एमरल्ड एक पत्थर होता है ग्रीन कलर का. ठीक है. तो उसको हम बोले यहाँ पे एमरल्ड सी, मतलब ग्रीन कलर का सी दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड. ठीक है. एमरल्ड इज बेसिकली अ स्टोन. एमरल्ड इज अ ग्रीन कलर्ड स्टोन होता है ये. ठीक है. इट्स अ ग्रीन कलर्ड स्टोन. दिस इज बेसिकली अ ग्रीन कलर्ड स्टोन. ठीक है. रेपिटेशन ऑफ द वर्ड, रेपिटेशन यूज ऑफ द वर्ड अमांडा. इमेजरी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ये इमेजिन कर रही है. ठीक है. ऑलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो यहाँ पे देखो एस यूज हुआ है, अगेन एस यूज हुआ है, यहाँ पे अगेन एस यूज हुआ है, यहाँ पे अगेन एस यूज हुआ है. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ. ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ ऑलिट्रेशन. एंड सिट अप स्ट्रेट. एस साउंड इज बीइंग रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. अल्यूजन क्या हो जाएगा भाई साहब? मरमेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर. मरमेड इज नॉट अ स्पीशी. ठीक है. ये हमारे सिर्फ ख्यालों में है, हमने सिर्फ मतलब इसके फैंटेसी वर्ल्ड में एक कहानियां बनाई हैं, बट नो मरमेड एक्चुअली एग्जिस्ट. ठीक है. मरमेड एग्जिस्टेंस में नहीं है. ठीक है. पोएम. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम? अभी मॉम का जो किचकिच है वो चालू ही है. ठीक है. तुमने अपना होमवर्क खत्म किया क्या? ठीक है. डिड यू टाइडी योर रूम? अपना रूम को क्लीन किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. ठीक है. अभी वैसा भी सारा चल रहा है उसके बैकग्राउंड में, और उसके सर के अंदर या उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है?
अब ये ऑर्फन अपने आप को इमेजिन कर रही है। ऑर्फन मतलब वन हु डजंट हैव पेरेंट्स, ठीक है। रोमिंग इन द स्ट्रीट, अब मैं भाई साहब फ्रीली भाई साहब स्ट्रीट में रोम कर रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्शेड, ठीक है, बेयर फीट, तो मेरा भाई साहब आपका सॉफ्ट, मैंने पूरे धूल से भरी हुई हूँ मैं, ठीक है, लेकिन क्वाइट और मतलब आराम से चल रही हूँ। बेयर फीट, मेरे पास जूते नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कम से कम शांति है, ठीक है, कम से कम शांति है और फ्रीडम बड़ा स्वीट लग रहा है, ठीक है। So this is what her mother is doing. She is constantly nagging, and this is what she is imagining. Okay. Now in the second stanza, Amanda is imagining herself to be an orphan. Her mother is asking whether she has done her homework, whether she has, cleaned the room, whether she has cleaned her shoes, etc., etc. And Amanda imagines herself to be an orphan, wherein she is not disturbed by any of her nagging parents, and she is free to move. ठीक है, भले ही वो उसके पास पहनने को जूते नहीं है या भले ही उसके ऊपर पूरा धूल जमा हुआ है, बट एटलीस्ट शी इज फ्री, ठीक है, एटलीस्ट शी इज फ्री। Here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned the room or not. Moreover, she is also reminded to clean her shoes. So here we can see that the mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, or whether she has cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the streets. तो वो भाई साहब अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? एज एन ऑर्फन हु इज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। तो अगर उसको पेरेंट्स नहीं होते थे तो शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट क्वाइटली। तो सॉफ्ट डस्ट है उस पर भाई साहब, जैसे आपने देखा है ना कभी कभी बहुत डस्ट जब पड़ा रहता है तो आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसा डस्ट अगर रहेगा तो इसमें कोई भी डिज़ाइन आप जैसे बना सकते हो। कभी कभी गाड़ियों में डस्ट रहता है तो आप भाई साहब डिज़ाइन बना सकते हो। तो अगर कोई डस्ट का सर्फेस है उसमें ऐसे फीट से अपना कोई डिज़ाइन बना रही है ऐसे अपनी मन घड़ंत, ठीक है। सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट, शी इज नॉट वेयरिंग शूज, ठीक है। सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स ऑपोजिट टू हर मदर, ठीक है। हर मदर वॉन्ट्स टू कीप हर एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? डस्ट पड़ा हुआ है, मेरे पैर पे चप्पल भी नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ, ठीक है, मेरे को पेरेंट्स भी नहीं है, तो पूरा उल्टा ही सोच रही है वो, ठीक है, ओके। बट अमांडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। मोreover, she is so fed up of these constant instructions from her mother that she says silence is golden. काश चारों तरफ साइलेंस होता, ठीक है, कॉन्स्टेंट कर 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 किए जा रही है, ठीक है, मेरी माँ, ठीक है, काश चारों तरफ ऐसा साइलेंस होता, ठीक है। Which means that silence is very crucial and precious. She further says that freedom is sweet. काश ऐसा मेरे को इनसे मुक्ति मिल गई होती, ठीक है, मेरा फ्रीडम होता इनसे। This means that she never feels free when she is with her mother, ठीक है। सृष्टि कुमारी बड़े चाव से सुन रही है ना, ऐसा ही होता होगा सृष्टि कुमारी के साथ भी, ओके। लिटरेरी डिवाइसेस, एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड, सबके साथ ही ऐसा होता है वैसे, अगर तुम अकेले केस नहीं है, ठीक है। रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 or more lines. डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, ठीक है, तो ये रिपीटेड, देखो डिड यू ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस इज एन एनाफोरा। राइम स्कीम इज AADAEEE। अमांडा हो गया भाई साहब ए, अमांडा हो गया ए, शूज, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी, किसका आवाज आ रहा है? कर 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 AADA, ठीक है, AADAE, फीट, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। बी क्यों नहीं लिखा भाई साहब यहाँ पे? AABA हो जाएगा ना भाई साहब, AABAEEE। असोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ, थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, ठीक है, तो आपका ओ साउंड जो है बहुत प्रोमिनेंटली इन सारे फ्रेजेस में या वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। रेपिटेशन, यूज ऑफ द वर्ड अमांडा, ठीक है, ये हो गया आपका रेपिटेशन। मेटाफर, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, ठीक है, तो इनको भाई साहब ग्लोरीफाई किया गया है। मेटाफर मतलब कंपैरिजन, तो यहाँ पे साइलेंस को किसके साथ कंपेयर किया गया है? गोल्ड के साथ, ठीक है। साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, ठीक है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज सेड टू बी वेरी स्वीट इन टेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम माई कॉन्स्टेंट नैगिंग मदर, ठीक है, दैट्स व्हाट शी इज इमेजिनिंग। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एक नहीं अमांडा, तो मतलब काफी सारा प्रॉब्लम्स होता है चॉकलेट खाने से, ठीक है,
पिंपल्स आते हैं, फोड़े आते हैं, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान नहीं दे रही है अपने मम्मी के बातों पर, ठीक है। सो शी इज शाउटिंग एट हर चाइल्ड, डोंट ईट चॉकलेट, तुमको पिंपल्स आते हैं वैसा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil। Rapunzel बेसिकली एक फेरी टेल है, ठीक है, बाय ब्रदर्स ग्रिम, ट्रैंक्विल, ठीक है। तो एक Rapunzel एक फेरी टेल है, गर्ल इन अ फेरी टेल, उसका नाम है Rapunzel, ठीक है। I have not a care, life in a tower is tranquil and rare। तो एक टावर में ये रहती है, अकेले रहती है, ठीक है, और बड़ा पीसफुल और काम लाइफ है, कोई रोक टोक नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। I will certainly never let down my bright hair। तो बहुत ब्राइट हेयर वाली एक लड़की अपने आप को इमेजिन कर रही है, शी इज बेसिकली Rapunzel and that's what she imagines herself to be, ठीक है। सो अगेन इसके मदर के ऊपर ही इसका इमेजिनेशन भी पैरेलली चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, Amanda's mother is disallowing her to eat chocolates। She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates। एक्सेसिव चॉकलेट्स, अगर एक्सेसिव स्वीट हम कंज्यूम करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो किसी किसी में पिंपल्स आते हैं, ठीक है। एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग। ऑब्वियसली शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, व्हाई? बिकॉज शी इज इन हर ओन ड्रीम वर्ल्ड। समटाइम्स शी इज इमेजिनिंग herself to be a mermaid, sometimes she is imagining herself to be an orphan, and now she is imagining herself to be a Rapunzel। तो अपनी दुनिया में खोई हुई है, जितना उसकी मम्मी चिल्लाई जा रही है उतना वो अलग तरीके से सोच रही है, ठीक है। कहीं वो Rapunzel बनी हुई है, कहीं पे भाई साहब वो मरमेड बनी हुई है, कहीं पे भाई साहब वो एक she is basically an orphan। all these things are basically, or all these thoughts at the same time are passing through her mind। At last she scolds her for not paying attention to what her mother says। So she is able to notice कि भाई साहब अटेंशन नहीं पे कर रही है, कॉन्स्टेंटली मैं बोले जा रही हूँ, कभी चॉकलेट खाने को मना कर रही हूँ, कभी भाई साहब सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करने के लिए मना बोल रही हूँ, लेकिन ये सुन नहीं रही है, ठीक है। शी इज नॉट लिसनिंग, ठीक है। ओके, एट दिस मोमेंट Amanda imagines herself to be Rapunzel। Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in tower by a witch। तो भाई साहब एक चुड़ैल ने इसको एक बहुत बड़े टावर में Rapunzel को कैप्चर करके रखा था, ठीक है। तो Rapunzel यहाँ पे रहती थी बहुत बड़े टावर में अकेले, ठीक है। The witch used to climb the tower with the help of her long hair of Rapunzel that were let down by through her to the window। तो Rapunzel यहाँ पे रहती थी, उसका एक लॉन्ग सा हेयर था, इतना बड़ा उसका बाल था भाई साहब, ठीक है। तो ये जो चुड़ैल थी ये उसके बालों के ऊपर चढ़ के ही ऊपर आती थी, ठीक है, सीढ़ी नहीं था कोई, ऐसा फेरी टेल है, ठीक है। सो नाउ Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in a tower will be peaceful and unusual। कम से कम शांति तो रहेगी, जब चुड़ैल आएगी तो आएगी, देखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा तो शांति है, ठीक है। She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower। She also confirms to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody can come to her in the tower, ठीक है। तो ये Rapunzel with a difference, ठीक है। यहाँ पे Rapunzel वो अपने हेयर को कभी भी नीचे नहीं छोड़ेगी ताकि उसको चढ़ करके ऊपर आए, तो यहाँ पे कोई चुड़ैल ना आ पाए, इसलिए अपने हेयर को वो नहीं करेगी नीचे, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस एल्यूजन, यूज ऑफ फेमस फेरी टेल कैरेक्टर Rapunzel। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एल्यूजन, मतलब आपने एक दूसरे फेरी टेल के कैरेक्टर को यहाँ पे लिया हुआ है, एक दूसरे फेरी टेल को कैरेक्टर को पोएट ने लिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज एल्यूजन, ठीक है। ओके, राइमिंग स्कीम भाई साहब एफ क्यों हो जाता है भाई साहब, ए बी ए होगा, जी जी जी, ठीक है। Amanda यू Amanda, केयर रेयर हेयर, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब सब के सब क्या हो जाएंगे, ए बी ए, और ये हो जाएगा भाई साहब सी सी सी। असोनेंस, यूज ऑफ द वोवल साउंड ई एंड ओ, विल यू, ठीक है। तो आपका भाई साहब ई काफी जगहों पे यूज हुआ है, ई, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे ओ साउंड यूज हुआ है, देखो ओ, ठीक है। दिस इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग ऑफ ओ साउंड। कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ द साउंड आर, आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर ब्राइट हेयर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आर यूज हुआ है। रेपिटेशन, यूज ऑफ द वर्ड Amanda, ठीक है। तो Amanda का जो नाम है वो काफी बार यहाँ पे इस स्टैंजा में यूज हुआ है। पोएम, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मतलब आपको समझ लो, मैं मिश्रा को डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मुंह लटका बैठा हुआ है, ऐसा जैसे डिप्रेशन में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सल्क करना। व्हेन समबडी इज शाउटिंग एट यू, यू प्रिटेंड दैट यू नो यू आर टेकिंग दैट पर्सन वेरी सीरियसली। हो सकता है आप ना भी ले, लेकिन आप अपना एक्सप्रेशन ऐसे ही बना रहे हैं कि आप उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सल्किंग, ठीक है।
तो stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तुम ये जो मुंह बनाए बैठी हुई हो यहाँ पे, सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने तुम पे चिल्लाया है, चिल्ला भी रही है, ठीक है, लेकिन मुंह बनाए जो बैठी हुई हो, ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, ठीक है, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी तुम्हारा चेहरा देखेगा तो यही समझेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया है, ठीक है. सो सल्किंग विथ मीन्स अ बैड मूड, ठीक है, ओके. Amanda's mother now wants her for behaving in a very odd manner. She asked her to stop being in a bad mood, ठीक है, तो अपना bad mood बंद करो भाई साहब. Moreover, she blames her for having such an unstable mood. She also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother, ठीक है. तो तुम्हारा ये जो हर समय मुंह बना हुआ रहता है, उतरा हुआ रहता है, तो लोग यही सोचेंगे कि मैं तुमको बहुत परेशान करती हूँ, ठीक है. So here we can say that though Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, but she can't react to this. मतलब वो react भी नहीं कर सकती, अपना मुंह बनाकर बैठ भी नहीं सकती, ठीक है. Okay, if she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child, ठीक है. So the facial expression that she is making after she is being scolded by her mother is not acceptable to her mother, because anybody who looks at her can point out easily that she has been recently scolded or punished by her mother in some sort, ठीक है. Literary devices, alliteration, stop that sulking, ठीक है. तो S आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे S आ रहा है. S sound is repeated at the start of the closely packed words, ठीक है. Repetition, use of the word again, Amanda. Rhyming scheme आपका भाई साहब AABA हो जाएगा, ठीक है. Okay, so that basically completes the poem in which we are talking about Amanda. Okay.